Particle is moving in a straight line. The variation of position x as a function of time t is given by this. The velocity of the body when acceleration becomes 0. Okay. अब आ जाइए, तो वेलोसिटी जो है डिफरेंशिएट कीजिए, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20. एक्सेलरेशन हो जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट, 6t माइनस 12. ये 0 होगा जब t हो जाएगा 2 सेकेंड. तो वेलोसिटी 2 सेकेंड पे 3 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20. 20 plus 12 is 32. 32 minus 24 is 8 meter per second. B is the answer. Thank you. A particle is moving in one dimension under the action of a variable force. Its initial position was 16 meter right of origin. The variation of position x with respect to time ये दिया हुआ है. Okay. Velocity of the particle when its acceleration becomes 0. The acceleration 0. तो पहले v निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, तो माइनस 9t स्क्वायर प्लस 36t प्लस 16. एक्सेलरेशन अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, दिस इज माइनस 18t प्लस 36. ये 0 कब होगा? जब t इज 2 सेकेंड्स. तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स इज माइनस 9 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 16. 72 minus 36 is 36. 36 plus 16 is 52. So the answer is 52 meter per second. The body starts moving from rest with constant acceleration, covers displacement s1 in the first p minus 1 seconds. s1 is equal to half a p minus 1 whole square, half a t square, u तो 0 ही है, and s2 in the first p seconds, half into a into p square. The displacement s1 plus s2 will be made in time. Okay, so half into a p minus 1 whole square plus half into a p square should be equal to half into a t square. It's gone. T square becomes 2p square minus 2p plus 1. T becomes root b. A body falling under gravity covers 2 points A and B separated by 80 meter in 2 seconds. The distance of the upper point A from the starting point is, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट किया, A आया और B आया. ठीक है, यहाँ पे अगर T पे पहुँचा था तो यहाँ पे T plus 2 पे पहुँचा है, and this distance is 80 meters. Okay, so half into 10 into T plus 2 का whole square minus half into 10 into T square is 80. So it becomes half into 10 into 40 plus 4 is equal to 80. This is 5. This goes as 16. So t plus 1 is equal to 4. T is 3 seconds. The distance of upper point A from the starting point is half into 10 into t square is 9. So 5. So 45 meters. Thank you. A particle initially at rest starts moving from reference point x equals 0 along x axis with velocity. तो v हो गया 4 root x. The acceleration of the particle is, acceleration is equal to v, okay, v is this, v dv by dx. ठीक है, तो dv by dx क्या हो जाएगा? 4 into 1 by 2 into x to the power 1 by 2 minus 1. So 4 by 2 root x. 2 by root x. So v is 4 root x into 2 by root x. So it's gone. 8 meter per second square is there. Okay, so remember this formula. A is equal to v
dv/dx, ठीक है, इससे स्ट्रेट हो गया, नहीं तो थोड़ा सा घूम के करना पड़ता है ना। dx/dt है ना, v को लिखिए dx/dt इज इक्वल टू 4√x, फिर x निकालिए और फिर जो है उसको डिफ्रेंशिएट करके y और a निकालिए, ठीक है। लेकिन बेटर है सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, एक बार में ही बन जाएगा। थैंक यू। Train A is moving along two parallel rail tracks towards north with speed 72 km/h. इधर जा रहा है 72 से, ठीक है। 2 into 5/18 कर लीजिए, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड से। एंड ट्रेन बी इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, ये ए हो गया, बी जा रहा है 108 से, तो 108 into 5/18 is 6, so 30 meter per second, okay. So this is 20 I cap, 20 j cap, this is minus 30 j cap. Velocity of train B with respect to A, velocity of B with respect to A is VB minus VA, which equals minus 30 minus 2, which is minus 50. And velocity of ground with respect to B, so which is minus velocity of B, which is plus 30j, so minus 50 and 30 plus 30, so is the bullet is fired into a fixed target, loses 1/3 of its velocity after traveling 4 cm. तो यहाँ से जा रहा है ये u है, और यहाँ तक आते आते 2/3 चला गया, 1/3 चला गया, so it becomes 2/3u. now this is, you know, अगर s1 है ये, this is 4 cm. So 4/9 u square is equal to u square plus 2 into a into 4 cm, ठीक है। तो a क्या हो गया, 5/9 u square by 2 into 4 cm माइनस, ये हो गया पहला। नाउ इट ट्रेवल्स अगेन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो यहाँ पे फिर से लगाइए v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर, तो u 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 4/9 u स्क्वायर प्लस 2 into a is 5/9 u square by into 9 into 4 cm into s1, तो s1 क्या हो जाएगा, s1 हो जाएगा, ठीक है, इट इज माइनस, so s1 becomes 9 is gone, 2 and 2 it's gone, so s1 becomes, and u square is gone, so 16 divided by 5, so this is 3.2 centimeter. So basically this is 32 millimeter, so 32 into 10 to the power minus 3 meter, so therefore D is the answer. Thank you. Particle starts from origin at t equal to 0, velocity is 5I, moves in xy plane under the action of force which produces a constant acceleration of 3I plus 2j. If the x coordinate of the particle at the instance is 84 meter, then the speed of the particle at this time is root alpha meter per second. तो x डायरेक्शन में जो है इनिशियल वेलोसिटी है 5 और एक्सेलरेशन है 3, so therefore 5t plus half into 3t square, this should be 84, तो ये कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये टूट जाता है, 3t स्क्वायर प्लस 28t माइनस 18t माइनस 168 इज इक्वल टू 0, 3 ठीक है, so 3t square minus 18t, so 3t t minus 6 plus 28 t minus 6 is equal to 0,
t is equal to minus 28/3 and t is equal to 6. ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, 6 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है. 6 seconds इज द टाइम. तो जो है इसका स्पीड हो जाएगा u प्लस 80. एक्स डायरेक्शन में इसका स्पीड हो जाएगा 5 + 3 × 6 विच इज़ 23. और y डायरेक्शन में इसका स्पीड हो जाएगा 2 × 6 विच इज़ 12. So therefore the speed of the particle will be root over 23 square plus 12 square. So 529 plus 144 which is 673. Thank you. A bullet is fired into a fixed target, loses 1/3 of its velocity after traveling 4 centimeters. It penetrates further d into 10 power minus 3 meter before coming to rest. Okay, the value of d is okay after traveling 4 centimeter. So basically we have to take that the average value of force is going to be the same, average retardation is going to be the same. Okay, so v square is है ना, तो initial था u, loses 1/3, तो 2/3 u is the final. So v square equals u square minus 2s. So 4/9 u square is equal to u square minus 2 into a into s is 4 centimeter. Okay, so so a becomes actually it's 5/9 u square into 1/8 सबको सेंटीमीटर में, तो 5/72 u square. It is acceleration. Okay, now it penetrates further d into 10 power minus 3 meter before coming to rest. So the value of d is now it loses. Okay, so 0 is equal to 2/3 u whole square minus 2 into a into s. S becomes 4u square by 9 into 1/2 into a. A is 5u square 72. So yes, so S is going to be so it's 5u square, u square is gone, it's 8 to 16 divided by 5 which is 3.2. this is centimeter. Okay, so 0.032 meter, so 32 into 10 to the power minus 3 meter. So the D is the answer. Thank you. The displacement and the increase in the velocity of a moving particle in the time interval from t to t plus 1 are 125 meter and 50 meter per second respectively. Okay, तो displacement जो है वो है 125 मीटर, ठीक है ना, और velocity increase है vt plus 1 minus vt है 50 meter per second. The distance traveled by the particle in t plus 2 second is I feel हमको assume करना पड़ेगा कि velocity is going to be acceleration is going to be
यूनिफॉर्म कांस्टेंट। ठीक है, ओके। तो चलिए जल्दी से करते हैं। ठीक है, एस टी प्लस वन है ना, यू टी प्लस वन प्लस हाफ इंटू ए टी प्लस वन का होल स्क्वायर। एस टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो टी एथ है ना, टी प्लस वन एथ सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है जो कि 125 मीटर है, वो हो जाएगा यू प्लस हाफ ए है ना इंटू 2t प्लस वन। ठीक है, ये हो जाएगा 125 मीटर। ठीक है, ओके। और ये दिया हुआ है, ओ तो एक्सेलरेशन तो हो गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टी प्लस सेकेंड, टी प्लस सेकेंड, तो एस टी प्लस टू हो जाएगा u ऑफ टी प्लस टू प्लस हाफ ए टी प्लस टू का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर एस टी प्लस टूथ सेकेंड में हो जाएगा u प्लस हाफ इंटू ए, तो यहाँ पे था 4t, यहाँ पे इज 2t, तो इट इज गोइंग टू 2t प्लस 3। ओके, और ये जो है दिस इज 125 हमको दिया हुआ है, तो आई कैन राइट u प्लस हाफ a इंटू 2t प्लस 1 प्लस हाफ इंटू a इंटू 2, ये 125 दिया हुआ है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 50 इंटू 2, दिस बिकम्स 175 meters. 175 is the answer. Thank you. A particle is moving in a circle of radius 50 centimeter in such a way that at any instant the normal and tangential components of its acceleration are equal. ठीक है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय आर, दिस इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। ये नॉर्मल एक्चुअली इट इज सेंट्रीपिटल वन। ठीक है, और ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज द वेलोसिटी। तो बेसिकली ऐसा कुछ होता है ना, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड दिस इज द नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो ये टेंजेंशियल के कारण जो है स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल, है ना, चेंजेस। पर ये जो नॉर्मल है ये क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो सिंपल, तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल हो जाएगा v स्क्वायर बाय 0.5, क्योंकि रेडियस जो है 50 सेंटीमीटर है, सो दिस इज एक्चुअली 2v स्क्वायर। सो देयरफॉर dv बाय dt वी कैन राइट एज 2v स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो dv बाय v स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 dt। इंटीग्रेट कीजिए, टाइम t इक्वल टू 0 पे v था 4, टाइम t इज इक्वल टू टाइम t पे, है ना। So this is v to the power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1, 4 से v is equal to 2t. So this becomes minus of 1 by v minus 1 by 4 is equal to 2t. So 1 by v becomes 1 by 4 minus 2t, तो v हो जाएगा एक्चुअली 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8t।
क्यों? क्योंकि 1/v हो जाता है, 1/v हो जाएगा 1 माइनस 8t/4, ठीक है, तो इसीलिए रेसिप्रोकल जाएगा। अब आ जाइए, v क्या हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8t, v को हम लिख सकते हैं dx/dt। अब कितना रेवोल्यूशन कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक रेवोल्यूशन में, 2πr, so this is equal to 4/1 minus 8t, so dx is equal to 4 dt by 1 minus 8t। इंटीग्रेशन कीजिए 0 से लेकर के 2πr तक, 0 से लेकर के t तक, so this is 2πr is equal to 4 into ln 1 minus 8t divided by minus 8 2। अब ये r जो है दिस इज एक्चुअली 0.5, so therefore pi is equal to ln 1 minus 8 to 8t by minus 2, so ln of 1 minus 8t is equal to minus 2 pi, ठीक है। और ये एक्चुअली होता ln1 माइनस ln1 होता, क्योंकि 0 से t तक करें ना, तो ln1 एक्चुअली 0 होता है, ठीक है। So therefore 1 minus 8t is equal to e to the power minus 2 pi, which makes t is equal to 1/8 into 1 minus e to the power minus 2 pi। ये अल्फा जो है ये 8 हो जाएगा। The relation between time and distance x is this, okay, where alpha and beta are constants. The relation between acceleration and velocity will be, okay, relationship between acceleration and velocity, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 1 is equal to अल्फा इंटू 2x dx/dt is v प्लस बीटा इंटू v, ठीक है। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, 0 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2 अल्फा इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज v इंटू v प्लस फिर से इसको x इंटू a प्लस बीटा इंटू a, ठीक है। सो दिस इज है ना। अब यहाँ से x को रिमूव कीजिए, तो x देखिए यहाँ से रिमूव हो जाएगा, x वॉज वॉट 1 माइनस बीटा v बाय 2 अल्फा v, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं 2 अल्फा v स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू a इंटू एक्स इज 1 माइनस बीटा v बाय 2 अल्फा v, 2 अल्फा is gone प्लस बीटा इंटू a, ओके। फिर से देखिए, तो 2 अल्फा v स्क्वायर ना प्लस अल्फा बाय v माइनस, सॉरी इट्स नॉट अल्फा, इट्स a प्लस a बाय a इंटू v माइनस a इंटू बीटा v बाय v, कट गया प्लस बीटा a, दिस इज गॉन, दिस इज 0, so a becomes 2 अल्फा v क्यूब माइनस के साथ, is the answer a, ओके। फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे हुआ, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो t जो है दिस इज अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2x इंटू dx/dt, dx/dt को v लिख सकते हैं, प्लस बीटा इंटू अगेन dx/dt, उसको v लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अल्फा है ना, 2 अल्फा निकल गया, ये x इंटू वी है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में डिफ्रेंशिएट होगा, तो पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v इंटू वी इज वी स्क्वायर प्लस x वैसे ही रहेगा, v को डिफ्रेंशिएट तो ये हो गया एक्सेलरेशन प्लस बीटा इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे x जो है हमको एलिमिनेट करना है, बिकॉज द रिलेशनशिप इट इज बिटवीन a एंड v। इसीलिए क्या करते हैं, x को अब कहाँ से लाएंगे, तो x को यहाँ से लेकर के आ जाइए, क्योंकि x इज एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ जस्ट v ओनली। तो लेकर के आइए x को तो 2 अल्फा इंटू वी स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स, एक्स इज 1 माइनस बीटा v बाय 2 अल्फा v, ठीक है, प्लस बीटा इंटू ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो हो गया 2 अल्फा वी स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 अल्फा ए बाय 2 अल्फा वी माइनस 2 अल्फा ए बीटा वी बाय 2 अल्फा वी प्लस बीटा ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बहुत कुछ टाटा बाय बाय हो जाएगा, ये 2 अल्फा चल गया, वी चला गया, यहाँ पे प्लस बीटा ए और यहाँ माइनस बीटा ए आ गया, इसीलिए ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास केवल ये बचा है, तो a बाई वी प्लस 2 अल्फा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो a बिकम्स माइनस 2 अल्फा वी क्यूब। मैंने दोबारा सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि पहले सॉल्व करने से मैंने दिखाया कि जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ता है ना, तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मिस हो जाए, हो गया स्टेप बीच में एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पहले मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। पॉइंट देखिए यहाँ पे ये है कि इस रिलेशन को हम लोग जो है डिफरेंशिएट करते हैं, तो फिर ऐसे ही ऑटोमेटिकली चीज़ें आने लगती हैं, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था कि डिफरेंशिएट करने से ये एग्जैक्ट आएगा और ये कटेगा, है ना, ठीक है, लेकिन हाँ, करने से रिलेशनशिप मिलता है, उस रिलेशनशिप को यूज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। अ स्मॉल स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ लॉन्ग सिलेंडर, तो बहुत लॉन्ग सिलेंडर है, कंटेनिंग ग्लिसरीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द ट्रांजिट ऑफ द बॉल। अच्छा, तो ग्लिसरीन है, तो ग्लिसरीन इज गोइंग टू गिव अ ड्रैग फोर्स, ठीक है, दिस इज द बॉल एंड दिस इज mg, और इधर जो है एक ड्रैग फोर्स होगा विच इज डिपेंडेंट ऑन, विच इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या होगा कि अब पहले तो उसका वेलोसिटी जो है mg के कारण बढ़ता रहेगा, ठीक है, लेकिन ये ड्रैग फोर्स भी बढ़ रहा है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो एक समय ऐसा ड्रैग फोर्स आ जाएगा जब जो कि इक्वल टू mg हो जाएगा। तो नाउ what will happen, net force is going to be 0, इसीलिए एक्सेलरेशन भी जो नेट होगा वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे आकर के उसका वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स वेलोसिटी 0 नहीं होने वाला है, यहाँ पे देखिए धीरे धीरे उस वेलोसिटी पे आया, अब ये वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगा, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, ये नहीं होगा। यहाँ पे तो लाइक यू नो शुरू में कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्यों है कांस्टेंट, नहीं mg लग रहा है, नहीं गलत है। ये बोल रहे कि वेलोसिटी इंक्रीज ही करेगा, नहीं इंक्रीज ही नहीं करेगा, है ना। ये सिमिलर क्वेश्चन है लाइक रेन ड्रॉप्स व्हेन दे फॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, सो दे अटेन अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, ठीक है, नहीं तो वो वेलोसिटी इंक्रीज होते 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 बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, है ना। एक स्मॉल बुलेट बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, इट रियली क्रिएट्स डैमेज, ओके। तो जो रेन ड्रॉप्स हैं उससे भी डैमेज हो सकता था, लेकिन वो एयर ड्रैग के कारण उसका वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे आके कांस्टेंट हो जाता है। तो देयरफॉर द आंसर इज सेकंड वन।